The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. अभी तक यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अब हाई लो कंपेयर करेंगे निफ्टी में भी यहाँ पर अच्छा खासा हाई लो लगाया है। बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ हाई लो यहाँ पे बना है 150 पॉइंट के आसपास का। Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. देख लेते हैं आपको वहाँ पे बैकग्राउंड में बजट का मतलब मैडम जो दे रहे हैं पीएम एफएम निर्मला सीतारमण, उस हिसाब से आपको ऑडियो जा रहा होगा, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं बजट खत्म होने दीजिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। Infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of सबका साथ सबका विकास has यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लेके आ रहा था कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास ये गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके गया था, उसी के आसपास अभी हाई लगा लो लगा के गया है। यहाँ से अब सपोर्ट लेके ये हाई को ये ब्रेक करता है तो आपको बाइंग का मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा छोटे कैंडल में मत नहीं जाएंगे, हम देखेंगे बड़े कैंडल में थोड़ा सा वहाँ पर मूवमेंट किस तरह का बन सकता है, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी मार्केट रहने वाला है बजट के टाइम पे। There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, सारे बैंक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बैंक के वजह से बैंक निफ्टी मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी में नेगेटिव होगा कब, जब बैंक के कंपोनेंट्स में नेगेटिव रहेंगे। साइड हो जा रहा है, कोटक बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है, एक्सिस बैंक भी अपना हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इंडियन बैंक भी साइडवेज थोड़ा सा जा रहा है। ज़्यादातर फोकस है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में कीजिए। एचडीएफसी बैंक अगर 1630 के ऊपर निकलना शुरू होता है तो सेल बाइंग का मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक भी अपना जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसके ऊपर ही निकलना शुरू करेगा तब उसको बाइंग का मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores.
global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets. ऑडियो ऑफ कर देते हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पे आ सकता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने ऑडियो ऑफ कर रखा है। हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट होगा बैंक निफ्टी में। आप तो लाइव अगर देख रहे होंगे तो बढ़िया है, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर करके वो लाइव ना दिखाऊँ क्योंकि मेरे पे इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ से अभी 41,300 के आसपास से थोड़ा सा सेलिंग के लिए आया। 100 पॉइंट के आसपास का ये मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी। वेट कीजिए, देखिए किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। मैं तो अभी ट्रेड लेने नहीं वाला, वेट करूँगा, देखूँगा बजट किस तरह का जाता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए लेना है। नहीं तो आप बैठ के देखिए इस दिन, ट्रेड ही मत कीजिए। जो भी न्यू भी ट्रेडर हैं ट्रेड मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी में आप इजीली फंस सकते हैं। $41,172 वेट कीजिए, देखिए किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। निफ्टी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिशरमैन के लिए अभी पॉजिटिव न्यूज एक आया है, उनके लिए कुछ बजट में रखा गया है। अभी निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब हाई लेवल के आसपास से सेलिंग के लिए आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेट कीजिए, इसके नीचे निकलने दीजिए और बजट का इम्पैक्ट भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी में आप यहाँ पे फंस सकते हैं, तो वेट करके देखेंगे, उसके बाद जाके सोचेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए रहना है। बैंक निफ्टी अभी अपना वो जो जोन था उस जोन के अंदर आ रहा है। स्टार्टअप के लिए आगरी एक्सीलेटर यूज किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 15 मिनट कैंडल पे यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है और नीचे तक आ रहा है। अभी 200 पॉइंट का भी टच करने लग गया। 41,000 राउंड लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये ट्रेडर को ट्रैप करे, यहाँ पे नीचे की तरफ आए, ब्रेक करे, फिर यहाँ पे बाइंग के लिए जाए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे।
सेंसेक्स अभी आप देख पा रहे होंगे 333 पॉइंट के ऊपर है, बैंक निफ्टी 374, निफ्टी 77 पॉइंट ऊपर है। तो आप इसको परसेंट वाइज में देखेंगे तो निफ्टी सबसे कम मतलब अप में गया, अभी निफ्टी में सेलिंग के लिए आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। एक ही कैंडल में ये 0.39 पॉइंट के आसपास का सेलिंग देखने को मिल चुका है, क्योंकि अभी तक कुछ पॉजिटिव आया नहीं है इंडिविजुअल के लिए, जो कि लेमैन लोग हैं उनके लिए कुछ आया नहीं है, टैक्स बेनिफिट कुछ आया नहीं है मुझे लग रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं तो आएगा तो तब पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पर हाई लेवल के आसपास से सेलिंग के लिए आया। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अभी तक वो जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये अपना हाई जो था, हाई के आसपास है सेलिंग होने के बाद, अभी जो लो जोन के आसपास है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वेट कीजिए, देखिए अगर लो को ब्रेक करता है तो सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए रुकिए, हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं, तीनों को एक साथ दिखाते हैं। यस, दिस इज फॉर बैंक निफ्टी, this is for nifty, and this should be for sensex. तो तीनों को एक साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, निफ्टी में भी हो रहा है और सेंसेक्स में भी हो रहा है। तो देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आएगा, उसी हिसाब से हम सोचेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए। फिलहाल अभी के लिए वेट करते हैं। मेडिकल कोर्सेज के लिए कुछ मेडिकल डिवाइस आएगा कि स्कूल को मतलब यूथ को कैसे स्किलेबल कर सकें, तो मतलब एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है। वेट करिए, इसको ब्रेक करने दीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव से, तो नहीं तो इस तरह का मूवमेंट होगा जैसे कि मैंने बताया। तो वेट कीजिए, इसको नीचे डबल कैंडल क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके इसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। फिजिकल लाइब्रेरी क्रिएट करा जाएगा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जो कि बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपना मतलब पढ़ने के लिए चाहते हैं लेकिन उनको बहुत से रिसोर्सेज मिलता नहीं है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर के लिए बढ़िया बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उतना ज़्यादा हम लोग का जीडीपी और हम लोग का देश ग्रो करेगा। डिजिटल लाइब्रेरी भी क्रिएट करा जा रहा है कि आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुछ फिजिकल कॉपी नहीं होगा। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी आप फिर वहाँ से बाइंग के लिए जा रहा है, तो उसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ वेट कीजिए, देखिए बजट कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे पॉजिटिव बजट था या नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी बीच में ट्रेड करेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होगा। आप यहाँ पे इतना बड़ा अगर बैंक निफ्टी में काउंट करेंगे, इसी कैंडल का हाई लो था 250 पॉइंट के आसपास का, तो 250 पॉइंट का तो आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं चल सकते, तो वेट कीजिए, नहीं तो पूरा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग कर सकते, नहीं तो अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा।
अभी तक ज़्यादातर ये मतलब पुअर पीपल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है, लेकिन बजट में इतना कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है। वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। पीएम हाउस योजना के लिए भी वहाँ पे बजट बढ़ा गया है 75,000 के आसपास। मुझे लग रहा है जो इलेक्शन आने वाला है उसके हिसाब से ये ज़्यादातर बजट को प्लानिंग किए हैं, ज़्यादातर पुअर पीपल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनका एजुकेशन हो गया, उनका घर कैसे बनेगा, सब कुछ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। अभी के लिए 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स एकलव्य स्कूल में ज्वाइन किए, वो भी वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। सब कुछ सही है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये जो बदतमीजी करते हैं, बीच बीच में बात करते हैं, एफएम यहाँ पे बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस वाले या कोई और ग्रुप वहाँ पे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी मोदी चैंट हो रहा है, ये सही नहीं है। मतलब आप इतने एजुकेटेड होकर भी ये करेंगे तो जो भी लोग हैं वो आपसे क्या सीखेंगे। कैपेक्स को अभी 10 लाख किया गया है और 33% से ज़्यादा बढ़ा है। मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा देखते हैं उसके वजह से कुछ इम्पैक्ट होता है क्या, क्योंकि अभी सेंसेक्स देखेंगे राउंड लेवल 60,000 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो चुका है और 41,250 के ऊपर अभी जा रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 17,080 के आसपास, 70,800 के आसपास। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यही लगा कि कैपेक्स को 10 लाख करोड़ उन्होंने किया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। 33% गेन हुआ है, मतलब बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बाजी मारा है। और 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर स्टेट्स टू कंटिन्यू, मतलब जो भी स्टेट्स को लोन फ्री इंटरेस्ट दिया रहा था, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा था, वो अभी फिर एक बार 1 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। जब तक लेमैन को यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखता तब तक मार्केट थोड़ा सा कहीं पे बीच में फंस सकता है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब 10 लाख के ऊपर 30% या 15 लाख के ऊपर 30% कैसे कोई दे सकता है मिडिल क्लास आदमी।
2.4 लाख करोड़ रेलवे के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। पिछली बार कितना था वो मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, नहीं तो उसको कंपेयर करके देखते कि इस बार ये पॉजिटिव में गया है या नेगेटिव में गया है। 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।
एआई के ऊपर भी इस बार फोकस किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ के लिए लोग वेट कर रहे हैं, जो भी रिटेल ट्रेडर हो गए वेट कर रहे हैं, वो मूवमेंट अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि वो उस तरह का न्यूज़ कभी आया नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं उस तरह का कुछ मूवमेंट आता है तो अभी जाकर हम डिसाइड करेंगे कि बाइंग या सेलिंग के लिए यहाँ पे प्रेफर करना है। फिलहाल तो बैठ के आप देखिए बस कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। डिजिलेटर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि डिजिलेटर बहुत ही बढ़िया आप एप्लीकेशन मान सकते हैं कि जो भी आपका डिटेल्स है, डेटा वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं। अपना सर्टिफिकेट हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, सब कुछ आप अपलोड कर सकते हैं आप डिजिलॉकर में। और जो भी डिजिटल मतलब आपको आधार को रिकमेंड किया जाता था कि आप यूज कर सकते हैं, अभी वो पैन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कि कुछ भी गवर्नमेंट के काम आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर मतलब कहीं पे चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन करना, तो आपको पैन को ज़्यादा प्रेफर कहाँ पे किया जाएगा। पिछली बार जो हुआ था बजट के टाइम पे, वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा खासा गिरावट पहले देखने को मिला था, फिर बाद में वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पर अभी तक कुछ तरह का मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वेट कीजिए। जितना आप यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे पैसा कमाना आपका मोटिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जैसे कुछ भी हो जाए हमें पैसा कमाना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे होता भी है, आपको वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है। उसी हिसाब से कैप्चर करेंगे तभी जाके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, क्योंकि बजट में कुछ भी हो सकता है। कुछ नेगेटिव कहीं पे आ गया तो यहाँ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी उसको कर सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। तो वो वोलेटिलिटी से बचने के लिए आप पहले देखिए उसको, आप एनालिसिस कीजिए ये न्यूज़ क्या इम्पैक्ट डाल सकता है हम लोग के इकोनॉमी के ऊपर, तब जाके उसका बाइंग या सेलिंग के लिए सोचेंगे। नहीं तो यहाँ तीनों में देख पा रहे होंगे, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सारे अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो वो उस रेंज को ब्रेक करने दीजिए, तब जाकर उसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बजट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बजट क्या इंपैक्ट डाल रहा है इकोनॉमी के ऊपर, तब जाकर आप इसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे, तभी जाकर आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ेगा। नहीं तो वेट कीजिए, देखिए, एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका पैसा बनेगा या ना बने, आपका कैपिटल बचना चाहिए। कैपिटल आप गवा देंगे तो कल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से सोचिए कि क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अगर स्टॉप लॉस डालता हूँ, क्या मेरा कैपिटल रहता है कि मैं दोबारा ट्रेड कर पाऊँ। अगर आंसर ये सत्य तब कीजिए, नहीं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बैठ के देखिए बस।
लैब ग्रोन डायमंड बनाने के लिए आईआईटी को एक मतलब मशीनरी को दिया जाएगा 5 साल के लिए कि उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट को जैसे घटा सके इंडिया में। लैब ग्रोन डायमंड सिमिलर होता है नेचुरली ग्रोन डायमंड के हिसाब से, तो उसके लिए भी यहाँ पर बजट में रखा गया है। 100 लैब्स रखा गया है 5G सर्विसेज के लिए, वो भी पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑलरेडी 300 to 350 पॉइंट का मूवमेंट ये कर चुका है 15-20 मिनट के अंदर। तो देखिए बजट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड कर सकते हैं। ₹90,700 करोड़ रखा गया नेशनल हाइड्रोजन के लिए।
टैक्स पेयर के लिए अभी तक कुछ भी आया नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा तभी जाके मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पुअर पीपल के लिए कुछ करना पड़ेगा उनको, तभी जाके बजट थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है मिडिल क्लास और बीपीएल लोगों के लिए। अभी मार्केट एक जगह पे रुक गया तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर आप कैसे फंस सकते थे। यहाँ पर अभी प्रीमियम बहुत ही ज़बरदस्त डिके हो रहा होगा, आपको मैं अगर दिखाऊँ, एक मिनट टाइम दीजिए। देखिए मार्केट वहीं पर वेट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम अब देखिए कहाँ पर गया था, 431 नीचे की तरफ गया था 269, बीच में फंस गया अभी प्रीमियम। तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे फंसे होंगे, इसके वजह से मैं आपको बोलता हूँ वेट कीजिए, देखिए उसके बाद जाके बाइंग या सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि मैं भी पहले बजट में ऐसे ही करता था, मैं भी फंसता था बहुत बार। वेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मूवमेंट किस तरह का हो सकता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्या नेगेटिव रहा। उसके बाद आपको वहाँ पर आइडिया थोड़ा सा अच्छा खासा मिल सकता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ किया जा रहा है, टूरिज्म किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए हो क्या रहा है। रेलवे के लिए जो 2.4 लाख करोड़ रखा गया था वो सबसे हाईएस्ट है, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अब तो कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट में सिचुएशन।
स्टाइपेंड सपोर्ट किया जाएगा 47 लाख यूथ को, लेकिन पता नहीं कब है कब नहीं। 55 मिनट हो चुका है, अभी तक कुछ इम्पोर्टेंट आया नहीं है मिडिल क्लास लोगों के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से ही मार्केट में इम्पैक्ट ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स में कुछ आपको कंसेशन मिलेगा या नहीं। अगर चेंज नहीं होता तो फिर एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिखा सकता है। सेंसेक्स अभी सपोर्ट ले रहा है 60,000 लेवल से, और निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है 17,800 लेवल से, लेकिन निफ्टी को क्लोज होना पड़ेगा 17,830 या 40 के ऊपर। और बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है 41,000 से लेकर 41,200 लेवल के ऊपर। देखिए यहाँ पर कुछ इनकम टैक्स के ऊपर आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे अच्छा खासा पड़ सकता है, मूवमेंट भी अच्छा खासा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अभी तक तो कुछ फिलहाल इम्पैक्ट अच्छा खासा इतना आया नहीं है, फिर भी वेट करते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। यूनिट मॉल्स क्रिएट करने के लिए वो प्रोत्साहन कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपका लोकल चीज़ होगा, मान लीजिए कोई हैंड क्राफ्टेड चीज़ है, जैसे कि उड़ीसा में मैं हूँ, वहाँ पर बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड चीज़ बनता है, तो वो लोकल यूनिट मॉल में वहाँ पे शोकेस किया जाएगा, जो कि मतलब टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। और एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का रखा गया है बजट। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड ई का अभी याद नहीं आ रहा है। एंटरप्राइज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज।
NISM के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जा रहा है, जो कि बढ़िया बात है। सीनियर सिटीजन का जो सेविंग था 15 लाख से उसको 30 लाख किया गया है। वापस डबल किया गया है, मतलब सिंगल अकाउंट मंथली सेविंग का भी 9 लाख है। जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख है मंथली, आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। सिंगल के लिए 9 लाख है।
अच्छा, अभी फिजिकल डेफिसिट 5.9% रहा, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम है, जो कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, जो कि अच्छा खासा है। 5.9% बढ़िया है। सॉरी, फिजिकल डेफिसिट 6.4 है अभी के लिए, अगले साल 5.9 के आसपास का जा सकता है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बात किया जाएगा, अभी देखते हैं क्या इम्पेक्ट हो रहा है। टैक्स एग्जम्पशन किया गया है कैपिटल गुड्स एंड लिथियम बैटरीज के लिए। कस्टम ड्यूटी भी घटाया गया 21% से 13% के आसपास।
मोबाइल कैमरा लेंसेज सीएनजी वगैरह थोड़ा सा चीप होने का चांसेस बढ़ सकता है। गोल्ड सिल्वर डायमंड एक्सपेंसिव हो सकता है इस बार। डायरेक्ट एक्सेस अभी आएगा। टैक्सेस नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। टैक्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए। हेलो। हाँ।
टैक्स रिलीफ मिलेगा 3.7 लाख कस्टमर को जिनका कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा है। ईपीएफ विड्रॉल पर टीडीएस घटाया गया है। जो टीडीएस लगता था वो थोड़ा सा कम लगेगा अभी। इनकम टैक्स ये ब्रैकेट को ऊपर नीचे करेगा इनकम टैक्स का।
तो ये बढ़िया न्यूज़ है। 7 लाख का किया गया है रिबेट के लिए, मतलब 7 लाख तक आप टैक्स नहीं देंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है। अभी मार्केट में इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, हाई इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। देखते हैं बैंक निफ्टी वगैरह किस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी 120 पॉइंट ऑफ है, निफ्टी 72 पॉइंट, 250 पॉइंट ऑफ है। सेंसेक्स 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ था। अभी 7 लाख तक अभी इनकम टैक्स नहीं है, उसके वजह से मार्केट में इम्पैक्ट देख पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट अभी हो रहा है। आपका सेंसेक्स अभी 250 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 80 पॉइंट के ऊपर है, और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के ऊपर है। तो देखते हैं और क्या न्यूज़ आ रहा है, उसी हिसाब से बैंक पर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जब लोग चाहते थे कि इस तरह का कुछ टैक्स के ऊपर आए, तो आज आया, उसके वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जो 15 लाख इनकम करते हैं इंडिविजुअल, उनको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1.5 लाख, जो कि बहुत बढ़िया रिलीफ है मिडिल क्लास लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया इनकम टैक्स के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे इनकम अभी जो 12 से 15 लाख है, उनको 15% देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा होगा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। सब लोग वेट कर रहे थे इसी इनकम टैक्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अभी इनकम टैक्स का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इनकम टैक्स के ऊपर अच्छा न्यूज़ आने के बाद देखेंगे मार्केट में किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंसेक्स अभी 400 पॉइंट के पॉजिटिव में है, और आपका निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई लगा का है 41,500 के आसपास। मैंने आपको बोला था कि वेट कीजिए, देखिए मूवमेंट आपको मिलेगा कब, जब मतलब मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। तो 7 लाख जब लिमिट किया गया कि 7 लाख तक आपका टैक्स नहीं ले, तब जाके मार्केट में आप मूवमेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसी हिसाब से मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला होगा।